Hello students, welcome to my channel High Education. So in previous chapter we had studied about education system. In this chapter we are going to study about empowerment of women. So let's start. Women had participated extensively in the freedom struggle. Women have also made important contribution in all fields in the post independence period too. That is what we will study in the chapter, as also the law enacted for women and other weaker sections. So हम सबको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले वुमेन्स के साथ क्या क्या होता था, कैसे टाइप की स्ट्रगल्स वुमेन ने फेस किए हैं. सो उसी से रिलेटेड हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. When we study the contribution of women in India, we realize that the roots of several of the problems they face lie in the mentality of men. So जब हम वुमेन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबको पता है कि वुमेन ने किस टाइप का स्ट्रगल फेस किया है उनके लाइफ में. एंड इंडिपेंडेंस से पहले सारे वुमेन्स के साथ बहुत अत्याचार भी होता था. इवन इन द 20th century, we have not been able to rid ourselves of this male centered mentality. And उस टाइम पे ना जो मेल ऐसे मेंस थे उनकी मेंटेलिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी. सो इसके वजह से क्या होता था ना कि मतलब वुमेन्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ता था. Vinoba Bhave made use of women power in the Bodhan movement, which he had started placing his faith in Mahatma Gandhi's philosophy. So विनोबा भावे ने क्या किया, वुमेन्स के पावर के लिए खड़े हुए एंड उनके साथ और किसके फेथ में, महात्मा गांधी के फेथ में. Women volunteer carried the message of Bodhan to all part of India. वुमेन के जो मेन हेड थे उन्होंने क्या किया कि वुमेन को फ्रीडम मिले, वुमेन्स भी इंडिपेंडेंट हो, इसके लिए उन्होंने पूरे इंडिया के पार्ट्स में अपना ब्रांच ओपन किया. वुमेन प्लेड अ significant role in the Telangana peasant armed struggle which cancelled the rule of Nizams and feudal system. As their region became free from bondage labor, women also found freedom from this टूर्नामेंट. सो बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद एंड बहुत सारी चीज़ें फेसेस करने के बाद वहाँ पे एक दो मैन ऐसे भी थे, विनोबा भावे एंड महात्मा गांधी के जो फिलोसॉफी थे उन्होंने उनके साथ स्टैंड लिया एंड उसके बाद वुमेन्स को थोड़ी थोड़ी फ्रीडम मिलने लगी. मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पावर. Women who have to face the brunt of scarcity of supplies and rising prices gave a show of their strength as an organized entity in 1972. Under the leadership of the socialist leader Mrinal Gore, women in Mumbai participated in a demonstration which came to known as the Latini Morcha, the rolling pin demonstration. Commodities like egg, oil, ghee, rava, maida would become scarce just as Diwali was near at hand. Kerosene had become very expensive. Women came together brandishing their rolling pins and took part in the demonstration. This movement met with success and public got a glimpse of the united power of women. So 1972 के बाद क्या हुआ कि वुमेन्स खुद के लिए स्टैंड लेने लगी एंड वो खुद का कुछ स्टार्ट करने लगी. मीन्स कोई वुमेन्स क्या करते थे, कमोडिटीज़ सेल करते थे डिफरेंट पीपल्स को. एंड उसके बाद अगर दिवाली का टाइम रहता था या कोई फेस्टिवल्स के टाइम रहते थे तो उस टाइम पे वो ऑयल, घी, रवा, मैदा ये सब बना के सेल करते थे, जिससे उनको उनके लिए पैसे मिलते थे जो वो खुद खर्च कर सके. The Chipko movement. Another show of constructive women power was seen during the Chipko movement in 1973. एक और वुमेन का पावर कब दिखाई दिया, 1973 में चिपको मूवमेंट में. Trees from the forest and the foothills of the Himalayas were to be cut down from the commercial purpose. फॉरेस्ट में से ट्रीज़ को कट किए जाते थे अपने खुद के यूज़ के लिए.
Chandi Prasad Bhatt and Sundarlal Bhagona had started a movement to prevent this, and इसको रोकने के लिए चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल भगोना इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए उन्होंने स्टैंड लिया. Women followed the strategy of holding hands and encircling each tree. So women का रोल उसमें क्या था कि वुमेन एक एक ट्रीज को जाके राउंड में सर्कल बना के खड़ी हो जाते थे एंड उसको कट करने से प्रोटेक्ट करते थे. As their method consisted of protesting the tree by embracing it, the movement came to known as the Chipko movement. And जो movement जो वो बचाते थे then उसको राउंड करके अपने हैंड से पर्टिकुलर ट्री को राउंड करके जो उस टाइम पे उन्होंने एक्ट लिया था, लिया था, उस एक्शन का उन्होंने क्या नाम दिया था? चिपको मूवमेंट. वुमेन टुक पार्ट इन इट इन लार्ज नंबर एंड इसमें बहुत सारी वुमेन्स ने पार्ट किया था. वुमेन हैड अ बिग रोल टू प्ले इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन. Gaura Devi was the activist who created this awareness among the women with the help of Sudesha Devi and बचनी देवी. सो गौरा देवी का इसमें मेन रोल था एंड उन्होंने ये पार्ट दो वुमेंस के हेल्प से लिए थे, जिसमें फर्स्ट का नाम था सुदेशा देवी एंड सेकेंड वन का नाम था बचनी देवी. एंटी लिकर मूवमेंट. In 1992 in Andhra Pradesh, a movement was started against the drinking of alcohol. So 1992 में क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश में अल्कोहल पीना, मतलब अल्कोहल बनाना और जेंट्स का अल्कोहल पीना स्टार्ट हो गया था. इट रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स इन द अदर स्टेट टू एंड इसका रिस्पॉन्स अलग अलग स्टेट्स में भी दिखाई देने लगा. व्हेन द हेड ऑफ द हाउस होल्ड डाइज and immediately that due to addiction to alcohol the family faces a serious crisis which affect women the most. and जब उससे फोर्स्ड ह्यूमन मर गया अल्कोहल पीने की वजह से, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एक वुमेन पे हुआ. ड्यू टू अल्कोहलिज्म they have to deal with extreme sorrow and poverty. This movement got the support of anti-attack movement in Andhra Pradesh एंड जिसकी वजह से एंटी अटैक मूवमेंट आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया. एज अ रिजल्ट ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी अटैक डीलर्स सेट अप शॉप्स इन एवरी टाउन एंड विलेजेस एंड अल्कोहल की इतनी परचेस, इतनी बिक्री, इतनी सेल होने लगी कि हर एक स्टेट में अलग अलग अल्कोहल के शॉप्स ओपन होने स्टार्ट हो गए. द पुअर लेबरिंग पीपल बिगेन टू गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल. जो गरीब घरों से बिलोंग करते थे वो भी अल्कोहल की तरफ एडिक्ट होने लगे थे. एट द सेम टाइम अ लिटरेसी प्रोग्राम वॉज बिगेन रन इन द विलेजेस ऑफ द स्टेट. The Sita Ma Katha was narrated as a part of this program. It was a story about Sita who creates awareness among the people of a village and get alcohol to be banned from the village. So उस टाइम पे क्या वुमेन्स ने स्टैंड लिया एंड जैसे सीता वो उस स्टोरी का नाम कर दिया था सीता कथा एंड जैसे सीता अवेयरनेस फैला रही हूँ कि अल्कोहल को बंद किया जाए विलेजेस में. इन 1992 3 youths of the Ghanta village of Nilori district in Andhra Pradesh drowned in lake in a state of inebriation and died. and उसके बाद 1992 में जो आंध्र प्रदेश का एक स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था, वो वो क्या हो गया, वो पूरा देश तबाह, मीन्स वो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट था वो पूरी तबाह हो गई थी. एट दिस इंस्टेंट द वुमेन ऑफ विलेज केम टुगेदर द फोर्स द क्लोजर ऑफ अट्रैक्ट शॉप. द रिपोर्ट ऑफ दिस न्यूज़ इन द लोकल न्यूज़पेपर हैड इट्स इफेक्ट ऑन मेनी villages. The movement spread to the entire state and government had to adopt a strict policy against the sale of alcohol. and ये जो न्यूज़ था, अल्कोहल की वजह से इतने लोगों की मौत जो हो रही थी, जिनकी डेथ हो रही थी, उनकी वजह से वुमेन्स ने बहुत कुछ कहा एंड जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया. इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर.
The United Nations had declared 1975 as the International Women's Year. So Women's Year 1975 में डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन के ज़रिए. The three aspects of the program were peace, development and equality between men and women. And ये प्रोग्राम क्यों किया गया था? बिकॉज मैन एंड वुमेन को पीस, इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट तीनों मिले. In 1975, the Government of India constituted the Committee on the Status of Women and appointed Dr. Full Renu Guha as its chairman. एंड उसके बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने डॉक्टर फुल रेनू गुहा को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया. अ कंपैरेटिव सर्वे वाज कंडक्टेड और सेवरल इश्यूज सच एज द सोशल पोजीशन of women, their status, the consequences of the constitutional provision made for the women, as also education of women and its percentage. Their process due to education, difficulties faced by working women, the position of women with respect to work, livelihood, their wages, the female-male ratio, birth and mortality rates, and the role of women. So उन्होंने क्या किया कि वुमेंस की पोजीशन, वुमेंस को भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए एज मैन, जैसे मैन को इक्वलिटी मिलती है. एंड उसके लिए उन्होंने एक प्रोविज़न भी लागू किया था. और वो किस किस के बेसिस पे था? एजुकेशन मीन्स वुमेन को क्या क्या मिलना चाहिए? एजुकेशन मिलना चाहिए. फिर जो भी वो डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं उनको वो नहीं होनी चाहिए. फिर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उनको भी वेजेस मिलना चाहिए जो वो काम करती है उसके लिए. एवरीथिंग के लिए सोचा था किन्होंने? डॉक्टर फुल रेनू गुहा ने. Taking into consideration this entire background, a statewide conference for women was held in 1975, organized by Stree Mukti Sangrahash Smiti. Women from all walks of life regions participate in it. The Smiti published its manifesto in 1978, the policy of a struggle against discrimination on the basis of gender, caste and Varna was adopted. This gave rise to a collection of songs with Stree Muktichi Lalkari, a Stree play called Mulgi Zali Ho by Jyoti Mahapekshar, and a periodical called Prerak Lalkari, which became their mouthpiece, and other such programs. In 1977, group like Stree Mukti Andolan Smiti, established by Saudimini Rao Pune Bhaijia, a fortnightly, as also Stree Ovach Maitrin and Stree अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद, महिला दक्षता स्मृति इन कोल्हापुर, महिला हक इन नाशिक, एंड नारी प्रबोधन मंच इन लतूर व फॉर्म. Anti-dowry protection committee were formed all over Maharashtra. A conference to protest against oppression of women was organized in Dhule city. So बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म किए गए थे वुमेंस के लिए, एंड जहाँ पे सारे स्टेट ने उसमें अपना पार्ट दिया था. एंड उसके बाद बहुत सारे शोज़ भी वुमेन से रिलेटेड निकाले गए थे जिस वजह से वुमेन को इक्वलिटी मिल सके. विद्या बाल्स पेरिडिकल्स, नारी स्मथा मंच एंड मिलुन सरयांजनी एज also the work of the समाजवादी महिला शुभ एंड क्रांतिकारी महिला संगठन were of great help in dealing with women issue. The employment guarantee scheme in the Maharashtra also helped to empower women. एंड बहुत सारे जितने भी उनके लिए प्रोटेस्ट किए गए थे, जितने भी उनके लिए मीन्स उनके लिए जो भी नियम लगाए गए थे वुमेंस के लिए, वो लास्ट में काम आए.